Hi students, today we are going to start theory of estimation and testing of hypothesis. Before starting the chapter, we must try to understand what do you mean by population and sample, because we need lot of knowledge about this. So when you are doing an experiment or you are doing some survey, so the population means the persons, the things, or a large group of elements that have at least one common feature. आजकल हम कोविड-19 की बात करते हैं, तो those people who are infected with the virus, they are the population under study. Now, what do you mean by sample? Sample is the part of population. Now, if we want to study the number of people infected by COVID-19 in Mohali, and on the basis of the patients of Mohali, we want to predict the symptoms of corona for whole of the India, then the patients in Mohali become the sample, and the whole infected people in India are known as the population. Population represents the entirety of persons, units, objects, anything that is capable of being conceived having certain properties. It may include anything. Whereas the sample is finite subset of population. A portion of the population is known as sample. So, how we can compare population and sample? Meaning, I think you better understood by my examples. Then includes in a population, each and every unit of the group is included. अगर हम patient of COVID-19 की बात करते हैं, तो उसमें सारे patients include किए जाएंगे. Those who are infected with COVID-19. Sample, जिन पेशेंट्स तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, जिन पेशेंट्स के, जैसे मैंने आपको बात की कि मैं थ्रू आउट द इंडिया तो शायद इस सर्वे कंडक्ट ना कर पाऊं, बट मैं मोहाली का सैंपल हूं, देन इट बिकम्स ए सैंपल. कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम स्टैटिस्टिक्स वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन में, दे आर नोन एज पैरामीटर. भाई इन सैंपल दे आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स. जब डाटा कलेक्शन की बात आती है तो कंप्लीट एन्यूमरेशन और सेंसस की बात करते हैं. जो सैंपल सर्वे है तो हम सैंपलिंग की बात करते हैं. पॉपुलेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करते हैं जब हम फोक्स की बात करते हैं. जब भी सैंपल में हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फेरेंसेस बनाते हैं. सो पॉपुलेशन के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, दे आर नोन एज पैरामीटर, वेयर एज द सैंपल दे आर नोन एज पॉइंट एस्टिमेट्स. सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जहां पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं और उस सैंपल में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट आए हैं उनके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं पॉपुलेशन की. पैरामीटर्स आर डिपिक्टेड बाय ग्रीक लेटर्स. ये ध्यान रखना, जितने भी पैरामीटर हैं उनको ग्रीक लेटर से लिखा जाता है, और जो एस्टिमेटर्स हैं उनको हम लैटिन लेटर से लिखते हैं. There are two main areas of inferential statistics. दो मेन एरिया जहां पे हम inferential statistics की बात करते हैं, that is estimation and hypothesis testing. Now we study one by one what do you mean by hypothesis and estimation. So first we start with the estimation. So estimation theory is the branch of statistics that deals with the estimating the value of unknown parameters based on measured or empirical data such as mu, means mean, standard deviation and p. Estimation statistics की वो ब्रांच है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम अननोन पैरामीटर्स को मेजर करते हैं. मीन्स हम ये कह सकते हैं, एस्टिमेट क्या है, एक गैस है, हमारा एजुकेटेड गैस है किसी अननोन क्वांटिटी के बारे में, और किसी आउटकम बेस्ड ऑन नॉन इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन पता है, उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैलकुलेट एन एस्टिमेट. A rule that allows us to calculate an estimates based on the measurement contained in a sample is known as estimator. जो रूल
the basis, the fundamental, the formula on the basis of that we want to calculate estimate values किसी भी सैंपल की, तो उसको हम एस्टिमेटर बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एस्टिमेटर एक सैंपल क्वांटिटी है, दैट इज ए स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एस्टिमेट अबाउट ए पॉपुलेशन क्वांटिटी। हम ये कह सकते हैं एन एस्टिमेटर इज ए सैंपल क्वांटिटी दैट इज ए स्टैटिस्टिक्स यूज्ड टू एस्टिमेट। एस्टिमेटर क्या है? एक स्टैटिस्टिक्स है दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट ए पॉपुलेशन क्वांटिटी एंड ए स्पेसिफिक ऑब्जर्व्ड न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर सैंपल। मतलब अगर हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो एस्टिमेटर हमें एक क्वांटिटी बताएगा, जबकि ऑब्जर्व्ड हम सैंपल की बात करेंगे तो सैंपल के में हमारे पास एक पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द सैंपल मीन एक्स बार इज एन एस्टिमेटर, मतलब जो सैंपल का मीन है वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के बारे में एस्टिमेट बताएगा हमें, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। लेट्स वी हैव ए रैंडम सैंपल ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमने 5 एलिमेंट्स लिए, उनकी एवरेज कैलकुलेट की, 10 जो अपना एक्स बार आया है, जो एवरेज आई है इन 5 नंबर्स की, दैट इज आवर एस्टिमेट। सो हम ये कह सकते हैं जो एस्टिमेटर है वो इज ए रैंडम वेरिएबल एंड एस्टिमेट इज ए कंप्यूटेड वैल्यू। एस्टिमेटर क्या होगा? कोई भी रैंडम वेरिएबल होगा, और जब एस्टिमेट की बात करेंगे तो हम उसकी कंप्यूटेड वैल्यू होगी। अब एक अच्छे एस्टिमेटर होने में उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए एक अच्छे एस्टिमेटर की? ए गुड एस्टिमेटर शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, अनबायस्डनेस। In statistical term, the expected value of the sample estimate is considered to be an unbiased estimator if it equals to the population parameter. अगर हमारे पास expected value किसी सैंपल की पॉपुलेशन पैरामीटर के, so in case of unbiasedness we can say that if the expected value of sample estimate is very nearly equal to population parameter, then we say that the estimator is unbiased estimator. For example, the sample mean x bar is an unbiased estimate of the population mean mu, which means that expected value of the sample mean is equal to the population means दोनों values हम we can say that both the values that is x bar is equal to population mean mu. This is known as the expected value, estimated value of mean, and this is the population parameter. Now comes to the consistency. An estimator is consistent if the estimator tends to get closer to the parameter it is estimating as the sample size increases. जितना sample size हम increase करेंगे, अगर उतनी sample के parameter की value population के parameter के आसपास आती चले जाएगी, nearer आती चले जाएगी, then we can say that it is a consistent estimator. Thus, if n is very large, the probability that x is close to mu will almost close to 1. Means अगर आपका n number size of the population, size of the sample size, sample size आपका बहुत ज्यादा होता, जितना sample size हम बढ़ाते जाएंगे उतना जो x bar है that come closer to mu and it almost comes to 1. A consistent estimator must be at least asymptotically unbiased. An estimate is said to be asymptotically unbiased if the bias tends to 0 for a large number of observations. अगर हम sample size बढ़ा देंगे तो उसमें क्या आएगा कि ये biasness है जो 0 के आसपास चले जाएगी जितनी number of observations हमारी sample में बढ़ेंगी. Then comes to the efficiency. The efficiency of statistics is the degree to which the statistics is stable. To which the statistics is stable from sample to sample. अगर हम एक सैंपल हमने एक पॉपुलेशन में से 4 सैंपल लिए, अगर फर्स्ट सैंपल में हमारी एक्यूरेसी और सेकंड सैंपल में एक्यूरेसी और थर्ड में हमारी एक्यूरेसी जो है कैलकुलेशन की
स्टैटिस्टिक्स की वो ऑलमोस्ट नियरर रहती है तो हम कहेंगे ये एफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है। लेसर द सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, जितनी सैंपलिंग जब हम सैंपलिंग करेंगे जितनी उसमें फ्लक्चुएशंस कम होंगी उतनी हमारी स्टैटिस्टिक्स की एफिशिएंसी है जो ज़्यादा होगी। देन कम्स टू सफिशिएंसी। An estimator is said to be sufficient estimator if it considers all the information about the population parameter present in the sample for the purpose of estimating the parameter। अगर हमने जो सैंपल की स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट की है, अगर वो सारी बातें प्रेडिक्ट करने में सक्षम है अबाउट द पॉपुलेशन, देन वी कैन से दैट इट इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। फॉर एग्जांपल मीन, जो अपना मीन है, यूज ऑल द सैंपल वैल्यूज इन इट्स कंप्यूटेशन। जब भी हम मीन कैलकुलेट करते हैं सारी ऑब्जर्वेशंस को हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट से लेके nth ऑब्जर्वेशन तक, जबकि मीडियन और मॉड के केस में ऐसा नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि मीन जो है वो बेटर एस्टिमेटर है देन द मीडियन एंड मॉड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एस्टिमेट्स फॉर द वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। दो किस्म के अपने पास एस्टिमेट्स होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए। वन इज पॉइंट एस्टिमेट एंड देन अदर वन इज confidence interval estimate. Now we will start with point estimates. जब भी कोई पैरामीटर हम एस्टिमेट करते हैं और एस्टिमेट हमारे पास जो आया वो सिंगल नंबर आए, देन इट इज नोन एज पॉइंट एस्टिमेट। फॉर एग्जांपल, हम लुधियाना से चंडीगढ़ का एक ट्रिप प्लान करते हैं। हम सबसे पहले उसमें देखेंगे डिस्टेंसेस, उसको हमने एक्स रख लिया किलोमीटर्स में। फिर जिस व्हीकल से हम जाना चाहते हैं उसकी माइलेज y किलोमीटर पर लीटर में। देन फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, पेट्रोल कर रहे हैं, डीजल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, जो भी हम यूज करना चाहते हैं, तो उस फ्यूल की पर लीटर कॉस्ट। जब इन सारी चीजों को इकट्ठा करके हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें पूरे ट्रिप की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो जो एग्जैक्ट कॉस्ट आएगी हमारे पास, एक सिंगल वैल्यू आएगी कॉस्ट, दैट इज नोन एज point estimate. The advantage of point estimation is that it yields a precise value. हमेशा हमारे पास एक सिंगल स्टिक वैल्यू आएगी जब भी हम पॉइंट एस्टिमेशन की बात करेंगे। The disadvantage is that the value of the confidence selected is quite low. इसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं होते पर्टिकुलर वैल्यू में, तो जब भी हम ट्रिप करते हैं देयर आर सर्टन थिंग्स अदर, कभी पंचर हो गया, कभी टोल प्लाजा आ गया जो हमें पहले से पता नहीं था, हम कहीं चाय के लिए रुके, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर अनप्लान्ड। सो हम कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट इतनी ही प्राइस हमारी आएगी जब हम एक ट्रिप पे जाएंगे। नाउ पॉइंट एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन मीन म्यू इज द सैंपल मीन एक्स बार। अगर हमारे पास पॉपुलेशन का मीन हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सैंपल का मीन हम किससे कर रहे हैं, एक्स बार। तो ये पॉइंट एस्टिमेटर होगा किसके लिए, म्यू के लिए। मीन्स एक्स बार पॉइंट एस्टिमेटर होगा किसके लिए, पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए। ये अनबाइस्ड है, मैंने आपको पहले ही बोला मीन इज द वेरी, क्योंकि मीन में हम सारी ऑब्जर्वेशंस को काउंट करते हैं, तो इट इज अनबाइस्ड, कंसिस्टेंट, सफिशिएंट एंड मोस्ट एफिशिएंट पॉइंट एस्टिमेटर। पॉइंट एस्टिमेटर फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन में से कितना प्रोपोर्शन हम सिलेक्ट करेंगे उसके लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए हमारे पास x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल ऑफ साइज n। हमारे पास एक सैंपल साइज है जिसका साइज n है, उसमें हमने कितने नंबर x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने सैंपल साइज में से लिए किसी खास एट्रीब्यूट के लिए। तो सैंपल का प्रोपोर्शन कितना होगा, कितना प्रोपोर्शन होगा सैंपल का, p इज इक्वल टू x अपॉन n। पॉइंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसको हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सैंपल का प्रोपोर्शन है उसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली पॉइंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉइंट एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस हम कैसे देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास x1, x2, x3 अप टू क्या है, ये n ऑब्जर्वेशन है, n यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन है। देन पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स बार xi मतलब पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
मतलब जो हमारा डेविएशन आएगा मीन से उसका स्क्वायर करके हम जब सम करके उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, देन वी आर एबल टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरिएंस। और सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए अब ये भी ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम सैंपल का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको एस स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। दोनों में फर्क क्या आएगा, यहां पे हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, म्यू की, पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन मीन आएगा। यहां पे हम किसकी बात करेंगे, यहां पे हम बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे हम पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे हैं, यहां पे हम सैंपल मीन की बात कर रहे हैं। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। हम प्रैक्टिकली इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करके और ज्यादा क्लैरिटी लेंगे। हमने यहाँ पे n लिया और यहाँ पे n-1 क्या लिया, ये हम भी आगे इसको डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 4 बैग्स ऑफ राइस। 4 हमारे पास राइस के बैग हैं किलोग्राम में, जिनको हमने रैंडमली चूज किया है। कहां से, ए लॉट ऑफ 100 बैग्स। 100 बैग में से हमने कितने लिए, 4, और चारों में से किसी का वेट 101 kg है, किसी का वेट 99 kg है, और एक का वेट 98 kg और एक का वेट 102 kg है। फाइंड द बेस्ट एस्टिमेटर। हमने बेस्ट एस्टिमेटर ढूंढना है किसका, वेट मीन का, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेट ऑफ ऑल द बैग्स। सॉल्यूशन, n कितना हमारे पास, n इज 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 4। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ट्रू मीन वेट x बार इज इक्वल टू 101 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 102 अपॉन 4. It comes to upon 4 is equal to 100 kg. Now to estimate वेरिएंस, हमने किसको एस्टिमेट करना है, वेरिएंस को। तो एस स्क्वायर, क्योंकि सैंपल की बात कर रहे हैं, सैंपल का साइज कितना है, 4, तो 1 ओवर n-1 समीशन xi माइनस x बार जो हमने कैलकुलेट किया क्योंकि सैंपल की बात कर रहे हैं। नाउ व्हाई वी पुट n-1, हमने जब भी हम बात करते हैं कि वेरिएंस निकालना है तो हम स्क्वायर्ड डेविएशन ढूंढते हैं। अब स्क्वायर्ड डेविएशन ढूंढने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए होती है, दैट इज द मीन। जब हम मीन से स्क्वायर डेविएशन निकालते हैं तो वेरिएंस में ऑटोमेटिकली वो वैल्यू n-1 आ जाएगी। मैं आगे इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको हाउ इट कम्स। तो एस स्क्वायर आपके पास कितनी आ गई, 1 ओवर 4 माइनस 1। ये आपके हम पास कैसे लेंगे, 100 आपने पास, तो 101 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 99 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 98 माइनस 100 का स्क्वायर प्लस 102 माइनस 100 का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर कम्स टू 1 ओवर 3, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इट कम्स टू 1 ओवर 3, 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4. It comes to, standard deviation comes to 10 upon 3 is equal to 3.33. So that comes to your standard deviation. Now अब हमने क्या that comes to your variance. This is your variance and now we have to find out the standard deviation. So to find the standard deviation, as we know that standard deviation is equal to square root of variance. So your standard deviation comes to
So standard deviation comes to 33.33 kgs, and it comes to square root of 3.33 is equal to 1.82 kgs. That comes to your standard deviation. Do with another example. In a random sample of 500 individuals. So here your n is equal to 500 individuals. 131 wear contact lenses. So what is your x number of people wearing contact lenses? X is equal to 131. Now to calculate estimation of proportion of people who wear contact lenses ये अपने पास क्या आएगा, P is equal to x upon n. So what is x? X is your 131 and your n is equal to 500. So it comes to 0.262. That is, we can say that 26.2% of the population may be expected to wear contact lenses.